The founders here. Back to our honorable chief guest. Ms. Mrs. Beverly Ma'am to deliver the welcome speech. Good morning, Madam dear parents, teachers, and my dear graduates. Today is a special day for all of us. This is the auspicious occasion of our UKG graduation ceremony. I feel immense pride and joy in welcoming you. This year, in the academic session 25-26, we are delighted to begin a beautiful new tradition in our school, celebrating graduation of our tiny tots as a step forward from UKG to class 1. It is not a ceremony, but a celebration of graduates' learning and new beginnings. I would like to take this moment to express my heartfelt gratitude and deep appreciation to our Honorable Managing Trustee Madam for our gracious presence as the Chief Guest today. Our constant guidance and support have always been a source of inspiration for all of us. These smiling, innocent faces standing before us today have taken their very first steps in the journey of education, from holding a pencil to writing, their first words, from shy beginnings to confident expressions. Their journey has been nothing short of remarkable. Today, as we receive their report from them, years later, when they grow into responsibility, and today we celebrate one such golden milestone. I would also like to express my heartfelt gratitude to all the parents for the presence here today. Shows your love, support, and commitment towards your child. Thank you for taking out your valuable time and for trusting us to be part of your child's early learning journey. Dear children, today you are not just moving to the next class, you are stepping into a bigger world of opportunities, dreams, and achievements. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Keep shining and learning and shining once again. I welcome you all and wish little graduates a bright and successful future. Thank you. Thank you, ma'am. Now the most coveted moment has arrived. It's time to celebrate the achievement of our young graduates. I request the dignitaries to come forward and confer certificates upon our students as we begin the graduation ceremony. Let us applaud our students for their hard work and success. Now I call Devanshi Sahu, Yasami, Anish Kupeja, Atish Sahu, and Ashish Sahu. I request their parents come along with their children for receiving their report card from respected dignitaries. What is
your teacher's name? My teacher's name. Ah, your teacher's name. Eva ma'am. Yes. This one doesn't talk? And what is your name? Huh? Manish. You don't know ma'am's name? What is her name? Yes, and there's Hema ma'am. Next. Okay. Hema ma'am also should be here. You should be there in the photograph of your bachas. You should have done the arrangement with some other teachers. CCA teacher about it. Somebody is there? Remember you, not me. Ma'am, after you did. Yes. Make sure that the teacher is there. Yes. That is the memory. Do I look like you? But I'm not judging. Just one. Sitting arranged properly. My God, this is going to fall off. I look like the dean of office. You here, you class teacher. Yes, of course. Whole makeup is for them, not for us. Madam. I graduated. Very good. Hold it, hold it. Ah. Right, right. Next class teacher. Please आप भी आइए. Parents, Which class is this? UKG. A. Speak loudly. Diploma. Samriddhi. Samriddhi. Amana Soni, Rachel Harder, Thomas. Come forward. Come forward. Come forward. Say thank you. Say thank you to ma'am. Ladies and gentlemen, this is a new start in RLPS group. Previously in Rani Lakshmibai Group of Public Schools, we did not have this ceremony. If you want, I can speak in Hindi also. ये प्रथम बार विद्यालय की कार्यशैली में ये फंक्शन हो रहा है और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए और एक सुखद यादगार बनाने के लिए हमने एक ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के कर्तव्य पालन पे और उनके कड़ी मेहनत से नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए जो काम हुआ है उसको अप्रिशिएट करें। क्लास 1 एक नया पड़ाव होता है। सडनली एक प्ले वे मेथड से हम लोग प्रॉपर एजुकेशन की तरफ आते हैं कि अब ICSE काउंसिल के रूल्स के तहत पढ़ाई उनके बनाए हुए करिकुलम पे चलना पड़ता है। अभी तक RLPS में एक बहुत ही स्पेशल मिश्रण था, प्लेवे मेथड, मॉन्टेसरी मेथड और RLPS मेथड का, जिससे कि बच्चों को एक बहुत आसान तरीके से एक बहुत खेल की और एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं ये 4 सालों में। और बच्चे की एक तरह से तैयारी ही होती है कि वो क्लास
1 में जाए, लेकिन क्लास 1 इज फॉर्मल एजुकेशन एंड आप लोग सबको मालूम है कि 7 साल की उम्र तक बच्चे की ईगो फॉर्म हो जाती है. सो वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन टू हिज कॉन्फिडेंस लेवल. बहुत स्कूल्स हमेशा ये बात करते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. मेरा एक ही सवाल है, कैसे? जब तक आप उस पद्धति में निपुण नहीं होंगे और स्वयं नहीं होंगे और स्कूलों की एक डाइल्यूटेड कॉपी करके और वही टीचर्स के फूल से पढ़ा लेना, उसको ब्रांड नेम देने से कोई फ़ायदा होता नहीं. सबसे बड़ी बात है टीचर और पेरेंट का सेल्फ कोऑपरेशन कैसे हो, क्योंकि अब पढ़ाई स्पेशली रिटन पार्ट, अभी तक जितनी पढ़ाई चल रही थी वो 90% ओरल थी क्योंकि बच्चे छोटे थे. अब आप सडनली फाइंड करेंगे कि राइटिंग पार्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और इसमें सहयोग चाहिए होता है पेरेंट्स का, क्योंकि अब होमवर्क भी बढ़ जाता है. मेरा 2 ही निवेदन है. पहली बात तो अपने बच्चों को स्मार्टफोन्स मत दीजिए. स्मार्टफोन्स बच्चों को स्मार्ट नहीं बनाना है, डम बनाना. उसकी सोचने की और उसकी विवेक की क्षमता को कम करना. ये जग व्यापी है, आप इसके बारे में जरूर पढ़ें. मेरी बात मानने या समझने की आवश्यकता नहीं है, पढ़िए उसका. स्क्रीन टाइम केवल आईज के लिए खराब नहीं है, वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा खराब है. पहली बात तो कांस्टेंट वेव्स आते हैं फोन के, और बच्चे की जो फ्रंटल लोब होता है वो 10 साल तक कमज़ोर होता है. जब बच्चा पैदा होता है आपके घर में मालिश की दाइयाँ आती हैं उसका सर गोल करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसका बोन्स ही नहीं फॉर्म हुए हैं, वो अभी तक कार्टिलेज फॉर्म में है. और इस अवस्था में आप उसको एक ऐसा खिलौना पकड़ा रहे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके दिमाग में डालता है, तो बहुत गलत है. दूसरी बात है, बच्चों को जब वो रील्स देखता है तो उससे डोपामिन रिलीज होती है ब्रेन से. इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप लोग. और बच्चे को उसकी आदत पड़ जाती है. वो माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची घर के आगे बच्चों से नहीं जुड़ता है, वो फोन से जुड़ना चालू कर देता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग फॉर इंटरपर्सनल इंटेलेक्ट. एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. हमें बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस को मोल्ड करना पड़ता है. जब बच्चा हमारे सानिध्य में आता है तभी वो हमसे पढ़ाई को ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं. मेरा यही निवेदन है कि आप लोग बच्चों को मोबाइल फ़ोन से अलग रखें, उसको ज़्यादातर क्रेयॉन्स और पेंसिल दें. स्पेशली लड़कों को जिनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, तो ज़्यादा ग्रॉस मोटर स्किल्स में ज़्यादा बेटर होते हैं लड़के, तो उनको फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटी घर में कराएं, क्योंकि ये काम अब स्कूल में कम हो जाएगा और हमारा पूरा ध्यान उसके राइटिंग में जाएगा. दूसरी बात है, सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, मैथ्स का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है. मल्टीप्लिकेशन अन्यथा मैथ्स के डिवीजन प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं. इसलिए हमारे टीचरों का ध्यान अब उस तरफ फोकस चाहिए. बड़ी क्लासेस में दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि खाली एक क्लास टीचर नहीं होती है, बच्चे को ज्वाइन करना रहता है बाकी टीचरों के. अभी तक उसके पास एक मदर टीचर थी, वो पूरा दिन एक ही लेडीज से इंटरैक्ट करता था, उसके सानिध्य में रहता था. अब उसको हैबिट डालनी पड़ेगी म्यूजिक टीचर की, डांस टीचर की, सीसीए टीचर की, हिंदी टीचर अलग, इंग्लिश टीचर अलग, मैथ्स टीचर अलग, साइंस टीचर, ईवीएस टीचर अलग. इससे बच्चे के मन में थोड़ा फ्रिक्शन आता है. मेरी ये निवेदन है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस बारे में ये बातें बताएं और उसको प्रिपेयर करें, उसे इमोशनली रेडी करें या वो बड़ी क्लास में. ग्रेजुएशन सेरेमनी का एक ये भी बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप लोग अपने बच्चे के प्रोग्रेस को समझें, तो ये समझें कि आप उसके घर में कैसे मदद कर रहे हैं ताकि आपका बच्चा हमारे आंगन में आके जाए. आप ये रियलाइज ज़रूर करेंगे कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहे हैं उनको पेरेंटल हेल्प बहुत मिलती है.
और पेरेंटल हेल्प तब मिलती है जब पेरेंट्स उसकी परेशानी को समझना शुरू कर दें, और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बच्चे को खींचा नहीं जाता, उसे सींचा जाता है, हमेशा ये बात है। और हर बच्चा एक फूल है, एक कली है जो अपने समय पे खिलेगा। वो आपके कहने पे प्रभावशाली नहीं बन सकता, वो अपने समय पे ही खिलेगा। इसलिए अपने बच्चे को निखार आने में उसको सही समय दें, बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया में, आज के फेसबुक के रैट रेस में हम लोग सब चाहते हैं कि ये तो IIT जाने वाला है। ये महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी नहीं है, और इस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं। पहली बात तो उसके खान पान का बहुत ध्यान रखिए। ओवर एक्सपोज टू प्रोसेस्ड फूड्स इज वेरी रॉन्ग। दूसरी बात, हाई सोडियम फूड्स नहीं देना चाहिए बच्चे को, इट्स ऑल्सो वेरी रॉन्ग। गर्मियों के टाइम पे पर्याप्त पानी, वेरी एसेंशियल। बच्चे की हाइट ठीक बढ़ रही है और डेंटल हेल्थ और आई हेल्थ ठीक है कि नहीं, इसका हम ख्याल पूरी तरह से स्कूल में रखते हैं। शायद ही कोई स्कूल आपने देखा हो जिसमें मेडिकल रिपोर्ट आती हो, हमारे वहाँ कंपल्सरी है पूरे RIT सिस्टम। समय समय में हम आप लोग को बता ही देते हैं कि अब इसके दांत में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आँख कमजोर हो रही है कि नहीं, हाइट ठीक बढ़ रही है। हालांकि उसमें भी जेनेटिक फैक्टर्स कुछ काम आते हैं। एंड सेकेंडली इज इज मेंटल एंड इज इमोशनल है, वो स्कूल आते वक्त खुश है कि नहीं। एक बच्चा जिसकी नींद पूरी नहीं हो वो स्कूल से खुश नहीं। एक बच्चा जो कि स्कूल में दोस्त नहीं बना पा रहा है और अपनी टीचर से अपनी दुर्गा नहीं कह पा रहा है, वो कभी भी इतना प्रभावशाली अपने कैरेक्टर को दिखा नहीं पाए। ये बातें हैं जो आपको देखनी है। अगले का बच्चा क्या कर रहा है ये ज़रूरी नहीं है, आपका बच्चा कैसे निखर रहा है इस बात पे हम लोगों को फोकस करें। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको also come forward. Now let's ask the parents. Ask the parents. Nitya parents. Please come forward. Now, next is Saman Pushpa. I request their parents, please come forward. Saman Pushpa has been also little scholar of yes, but Yes. Now, big round of applause for their parents.